हमें
Welcome, ma'am. Thank you so much. Rishpal sir, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Mother, 1 मिनट आना. Oh my God. जी. Okay. Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ma'am, basically this is a workshop on basics of research, writing research proposal and thesis writing, starting from May 4th to 11th, 2022. Today is the last day of this workshop, and it is converted into value-added course. It's in both form blended mode, that is online as well as offline. Nice. In this, on 5th day, Dr. Tarlok Bandhu, Principal Khalsa College of Education, Muxar, demonstrated their review of literature online as well as offline in offline mode. Basically, this workshop is organized by Research Cell of GHG Khalsa College of Education, Gursar Sudhar. Yesterday, Dr. Avaninder Preet Singh, Associate Professor, Malwa Center College of Education, deliberated on research designs, qualitative, quantitative, as well as mixed methods. The student moderators were Rita Rani, Neha Tandon, and a
Rita Rani. Rita, kindly share your screen if you have PPT, or you can unmute yourself. Good afternoon, sir. Good afternoon. Haji. I, Rita Rani, welcome all dignitaries present here. Now I am going to present the report of the last session in front of you all. Firstly, introduction of the resource person from previous session. Our resource person was Dr. Abninder Singh, sir, Associate Professor, Malwa Center College of Education for Women, Ludhiana. Topic was research design on qualitative, quantitative, and mixed method. In yesterday's session of the value-added course, Dr. Rashpal Singh sir introduced the resource person, Dr. Avninder Singh sir, Associate Professor Malwa, College of Education, Ludhiana, as a very vibrant personality, analytical, and an ocean of knowledge. Dr. Avninder virtually deliberated on the topic research designs, qualitative, quantitative, and mixed method. By the best method of teaching, chalk and talk and PPT. The resource person addressed the audience and talked about how to do research and prepare research design on the basis of quantitative, qualitative, and mixed research methods. He commenced the discussion by briefly explaining the meaning of research, research design, term of research, and its method in a simple and easy comprehensive language. He continues his deliberation by clarifying about research design and said it should be able to convey the following main questions. What is study about? Where will study be carried out? Third question, what type of data is necessary? Where necessary data is available? Then how much time is needed to complete the study? Then what will be sampling design? Which tool will be identified to collect data? How data will be analyzed? He further briefed about the elements of research design and the variable of research design. We can say that qualitative research includes narrative research, phenomenology, ground theory, ethnographies, and case studies. Quantitative research includes experimental design, non-experimental design, longitudinal designs. Mixed method includes convergent, explanatory, sequential, exploratory, sequential, and abundant code designs with examples. After the Dr. Abninder discussed at length about the Campbell and Stanley symbol system. Quasi-experimental design, some more designs, and factorial design. His discourse was strongly supported by relevant examples, hence was easily understood by all participants. The session was followed by a discussion round where in the resource person took the queries of the participant about the topic. On the whole, it was a very useful session and the participants truly benefited out of it. Then the session was ended up by
Dr. Rashpal Singh, sir, in which he briefly described the session and gracefully thanked Dr. Avninder Singh, sir, for sparing his time and sharing his expertise and experience with the participant. Thank you, sir. Thank you, all of you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਟਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਸਿੰਗਲਾ PhD MCom MPhil MBA UGC NET. Madam is assistant professor at Shri Aurobindo College of Commerce and Management, Ludhiana. Dr. Minu Singla is assistant professor affiliated to Punjab in college affiliated to Punjab University, Chandigarh, with a rich experience of more than 15 years in academics and industry-related assignments. The industrial interface project have equipped with her with the knowledge of connection of theoretical and practical applications of the various aspects. Her academic interest is in the area of HRM, like job satisfaction, employee retention, entrepreneurship, corporate social responsibility, sustainability, green marketing, customer satisfaction, etc. She authored a book on services marketing, participated in various national and international conferences, including IITs, IIM. She has varied research papers and articles indexed in Scoopers and other reputed journals. She is an active social worker and working for women empowerment. She has been awarded for the social work and recognized for her initiative, resource person for Punjab Police Academy, Flore, and other educational institutes of high repute. Dr. Minu Singla ma'am, you are most welcome. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगावांगा और दूसरा मैम प्लीज़ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ M.Ed ਤੇ B.Ed ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ M.Ed ਸਿਮਿਲਰਲੀ B.Ed ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SPSS ਬਾਰੇ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ most probably install kar liya hoega. Over to you, ma'am. Thank you so much, Rashpal sir. I would really like to congratulate the initiative taken by GHG Khalsa College for Education, Subhar. I really feel very nice when I learned about what has happened in the previous sessions. It is really a value-added course, and congratulations to all the I would say all the committee members, all the organizers, along with the principal, Dr. Pargat Singh, for this nice initiative. And really, it is a value addition course for the students. Students, I also wish you best so that you can carry on with your research work from all the values which you are getting through various courses and the various initiatives taken by the institute. Congratulations, team, for this nice initiative. Thank you for your nice words, Rashpal sir. Sir, may I share my screen first? I just want to know if any of the students, if any of the students is having any problem while downloading this SPSS software. I hope so. All of you are having the software, right? Beta, you can say yes or no. If you have any problem, I'll try to solve it out in downloading the software. This would be the icon on your screens when you are going to get the software.
इट कुड बी ऑन योर डेस्कटॉप. अगर डेस्कटॉप पे नहीं आया तो स्टार्ट मेन्यू में जाके वहां पे IBM SPSS नजर आएगा. इज इट देयर? Ours would be a hands-on session. बच्चों तुम्हें बोलना पड़ेगा और पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी. I'm audible to you all, na? Yes, ma'am. Okay, right. So any problem? नहीं हुआ सॉफ्टवेयर डाउनलोड क्या? या हो गया है? Done, ma'am. Okay, right. चलो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले. SPSS. Do you have any idea what is this SPSS? सुनते हैं आप बहुत ज्यादा जब रिसर्च की बात कर रहे हैं कि SPSS के थ्रू एनालिसिस कर लिया है. SPSS है क्या ये? मैम एक सॉफ्टवेयर है जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट हो सकते हैं. चाई स्क्वायर हो गया, अनोवा, मनोवा, ये सारे किए जा सकते हैं इसके अंदर. राइट, वेरी गुड. अगर आपको ये SPSS नहीं आता है फिर आप कैसे करते हो ये सारा कुछ? लेट इट बी आई वांट टू कैलकुलेट मीन ऑफ माय सैंपल, है ना? ये चीजें तो तुम लोग सारी सीख चुके हो, आप लोगों को सारा ये आता है. सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है. सो लेट इट बी, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मीन एंड यू डोंट हैव एनी सॉफ्टवेयर, मीन कैसे निकालते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हो, कोरिलेशन कैसे निकालते हो? कहीं ना कहीं ये हमने अपने स्टैट्स के सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है. कैन एनीवन टेल कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्कूल में भी था मैथ्स में. मैम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. राइट. हम फॉर्मूला लगाते थे और फॉर्मूला लगाते हैं कोई भी जो हमारे पास डेटा शीट होती है, ठीक है. लेट इट बी, जो हमने स्कूल में कैलकुलेट करना होता था तो उसमें तो 5-4 फिगर्स होती थी, बड़े इजीली हम कैलकुलेट कर देते थे. और अभी जब हम अपने रिसर्च की बात कर रहे हैं, लेट इट बी वी हैव टेकन द डेटा फॉर 500 रिस्पोंडेंट्स. तो अगर 500 हमारा सैंपल साइज है, उसका हमने मीन निकालना है, उसकी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, आई थिंक सो आवर कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी लॉन्ग इनफ. सो दिस statistical packages, this software, it helps us to save time. ठीक है, ताकि हम जो भी ये करना चाहते हैं, अपनी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, वो जस्ट एक क्लिक के ऊपर हमारी कैलकुलेशंस हो जाएं. ठीक है, वी डोंट हैव टू डू मच ऑफ द एफर्ट. ओनली थिंग वी रिक्वायर इज कि हमें थोड़ा सा ये पता हो ये चलाना कैसे है. So my session would be today related to some introduction to this SPSS. बेटे अपना सेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव तब रहेगा अगर आप लोगों को जब भी कोई भी डाउट है मेरे से उसी टाइम पूछ सकते हो. ठीक है, यू कैन जस्ट इंटरप्ट सो दैट इट इज़ मोर क्लियर. एंड अनदर थिंग इज एट द एंड, बीच में भी आप लोगों को आई वुड बी शेयरिंग विद द डेटा शीट. आप लोगों को खुद कैलकुलेट करके मेरे को बताना होगा आंसर क्या आ रहा है, फिगर्स क्या आ रही हैं तुम्हारी. उतनी देर ये इफेक्टिव नहीं रहेगा हमारा सेशन जब तक आप लोग खुद पार्टिसिपेट नहीं करोगे. नहीं तो मैं जो मर्जी बोलूंगी तुम्हें ठीक ही लगेगा कि मैडम सही ही बता रही होगी, मैडम को आता होना है ये चलाना. ठीक है, बट जितनी देर तक तुम नहीं चलाओगे तुम्हें नहीं आएगा ये. सो यू हैव टू डू अलॉन्ग विद मी. आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दिस थोड़े से इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आप लोगों के कैमरा भी ऑन करवा दूंगी सो दैट आई कैन सी व्हाट यू ऑल पीपल आर डूइंग. ठीक है, चलो जी. सो SPSS दैट इज अ सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस SPSS एज वेल एज द एक्सेल शीट्स? SPSS as well as the Excel sheets. Excel spread बोल देते हैं. मैम थोड़ा पता, मतलब एक गैस ही है कि एक्सेल जो होती है सिर्फ एक स्प्रेडशीट होती है. आई थिंक SPSS स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ज्यादा करते हैं. राइट. यू आर प्रेरणा? यस मैम. राइट, वेरी गुड प्रेरणा. एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट. ठीक है,
उसमें हमारे पास कुछ भी डेटा गिवन है, वहां पे हम अपने फॉर्मूलाज खुद लगाएंगे, फिर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस SPSS, इट इज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, एनालिसिस सॉफ्टवेयर, इसमें अपने आप एनालिसिस होएगा, जस्ट हमने पॉइंट आउट करना है, पॉइंट एंड क्लिक. So this was first launched in 1968, and the first version that was found by Norman Nye, Dale Bent, as well as Hadley Hull. Okay, these were the three people, those who came out with the first version of this SPSS, and further it was acquired by IBM in 2009, and now officially it is known as IBM SPSS. ठीक है, IBM ही लिखा होता है. जब हमने इसको डाउनलोड भी किया, IBM SPSS ही आ रहा था. So SPSS is software for editing and analyzing all sorts of data. ठीक है, एडिटिंग एंड एनालाइजिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट. एडिटिंग मीन्स कुछ ना कुछ हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, एंड एनालाइज, उसको एनालाइज करके कुछ भी अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. एंड इसका एक प्लस पॉइंट है, जो भी ये SPSS सॉफ्टवेयर है, ये बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स को एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडशीट्स एक्सेल में से ले सकते हो, ठीक है, ऑफिस से ले सकते हो, प्लेन टेक्स्ट फाइल्स विद TXT और CSV फाइल्स, ये हर तरीके की जो फाइल्स हैं, दीज आर असेसिबल, दीज कुड बी फर्दर एनालाइज्ड, दे कुड बी फर्दर यूज्ड इन दिस SPSS सॉफ्टवेयर. अनदर थिंग इज व्हाई SPSS. अगर हमें पता है कि एक्सेल के ऊपर भी ये हो जाती हैं चीजें, तो हमने SPSS से क्यों यूज करना है? तो एक हम बात कर रहे हैं कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर. एक्सेल में अगर हम यूज करेंगे, हर एक चीज के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला पहले खुद याद भी करने पड़ेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा और कैसे कैलकुलेट होंगे, एंड उसके बाद बहुत ध्यान से हमें वो देखना भी पड़ेगा. ठीक है, SPSS में क्या होगा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं याद रखना है, हमने एक बार SPSS की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा की एंट्री कर दी है, इसकी शीट्स उसके अकॉर्डिंग बना ली है, एंड उसके बाद अपने आप जैसे जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, वैसे वैसे वो हमें रिजल्ट्स देता रहेगा. So this is having all the complex statistical tests. These are a built-in feature. ठीक है, कुछ भी जो तुम लोगों ने पहले मेरे को नाम बताए, अनोवा बताया, मनोवा बताया, मैनकोवा होता है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, जो मर्जी चीज, कंपेयरिंग एनी ऑफ द मीन्स, एनीथिंग, हम हर चीज सिर्फ एक क्लिक के ऊपर इसमें से वैल्यूज निकाल सकते हैं, उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं. एंड ऑल्सो जो भी रिजल्ट्स इसके आते हैं, दोज कुड बी इंटरप्रेटेड इन समथिंग वेरी इजी फॉर्म. ठीक है, वो हमें समझ आ जाते हैं उसी टाइम पे कि ये क्या कह रहा है. एंड अकॉर्डिंगली जब भी हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जो भी हमने डेटा अपना एनालाइज किया होता है, उसमें बहुत ज़रूरी है, कल डेटा अगर हम वहाँ पे लिख दें कि क्या रिजल्ट आए हैं, तो वो नहीं पता है, सिर्फ टेबल दिखा दिए. वी नीड टू इंटरप्रेट दोज थिंग्स, वी नीड टू टेल दम क्या कह रहा है, हमारा डेटा क्या बता रहा है, जो एनालिसिस हमने किया है उससे हमें क्या पता चल रहा है. ठीक है, वो राइटिंग पार्ट मैटर कर रहा है, और यहाँ पे वो राइटिंग पार्ट भी उसको टेबल्स को देख के लिखना इजी है. एनी डाउट स्टिल हियर? Further, this is some of the main features of this SPSS. This is the overview. First is it can open the data files in so many file formats, which we have already discussed. Then the data could be edited. ठीक है, कुछ उसमें चेंजेस करनी है वो आ सकती हैं. कुछ सम्स कैलकुलेट करके हमने सम के फिगर को लेना है फर्दर कैलकुलेशन के लिए. ठीक है, या हमने जो कॉलम्स बनाए हुए हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं, है ना, उनको कुछ चेंज करना है, रोज को कॉलम्स में कर लिया, कॉलम्स को रोज में कर दिया, दैट थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. कुछ मीन के फिगर्स लेने हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के कुछ एग्रीगेट फिगर्स लेने हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन यूज दोज फिगर्स फॉर फर्दर एनालिसिस. Another thing it can do is it can create the tables, the charts with the frequency counts and all the sort of the summary statistics जो भी हमारे पास आती है उसमें, ये हम अभी करेंगे भी. Then it can run the inferential statistics like ANOVA, regression. ठीक है, inferential ये क्या होता है बेटे?
Can you tell me what is this inferential statistics? हम जिससे कोई इंफॉर्मेशन इन्फर की जा सकती है. Okay, कुछ हम predict करते हैं, ठीक है? Anybody else? For example, एक होता है हमारे पास descriptive, एक होता है inferential. जब हम descriptive की बात कर रहे हैं उस टाइम पे we just want to tell जो हमारे पास डेटा शीट है उसके बारे में हम बता रहे हैं. इसमें इतने रिस्पोंडेंट्स हैं, लेट इट बी इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल्स हैं, जो भी हमने डेटा लिया हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पे इनका मीन इतना है, इनकी स्टैंडर्ड एविएशन इतनी है, मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है, रेंज इतनी है. दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द डेटा सेट जो हमने लिया है एज अ सैंपल. दैट इज डिस्क्रिप्टिव. और जब हम इन्फ्रेंशियल की बात कर रहे हैं, इन्फ्रेंशियल में हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं. प्रिडिक्शंस क्या कर रहे हैं? जो हमारा सैंपल है वो किसी ना किसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वी वांट टू जनरलाइज whatever results we are getting from this sample, that those stand good for our population also. ठीक है, यहां तक बताओ मेरे को, आप लोगों को क्लियर है? Descriptive statistics as well as inferential statistics. Am I clear with all these things? Yes, ma'am. Right. It's very good. And last इसमें लिखा है कि it save the data or the output in a wide variety of file formats. जैसा हम चाहते हैं उस फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं. ये है हमारा SPSS का लेआउट. जब हम SPSS, yes Deepti, do you want to say anything? No, ma'am, sorry. I got unmuted. Okay, it's okay. So, जब हम SPSS खोलते हैं ना, ऐसी ये वाली स्क्रीन आती है जो ये पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है. ठीक है, ऊपर इसका ये मेन्यू बार है. These are the icons and this is the dialog box जो आपके पास आता है जब हम पहले SPSS खोलते हैं. अब SPSS में ना दो व्यूज होते हैं हमारे पास. एक होता है डेटा व्यू और एक होता है वेरिएबल व्यू. ये नीचे देखो बेटो, यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, मेरा कर्सर नजर आ रहा है तुम लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पे दो व्यूज हैं, एक डेटा व्यू है और एक ये वेरिएबल व्यू है. ठीक है, दीज वुड बी दी टू मेन थिंग्स जहाँ पे हम काम करने वाले हैं. पहले ये व्यूज होंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमने करना क्या है उसमें. सो दिस इज दी, जब सबसे पहले अपन ये खोलते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, SPSS को, तो हमारे पास ये लेआउट आता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू है. डेटा व्यू क्या होता है? उसमें हमारे पास आता है, इट डिस्प्लेज द डेटा वैल्यूज. ठीक है, द वेरिएबल्स आर इन दी कॉलम्स. और नेक्स्ट हमारे पास होता है एक वेरिएबल व्यू, जहाँ पे जो हमारी रोज हैं दोज आर दी वेरिएबल्स एंड कॉलम्स टेल्स अस अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएबल्स. ठीक है, ये जब मैं खोलती हूँ उसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना था आगे. इससे पहले, इसके बाद तो हम अपना ये सॉफ्टवेयर ही खोलेंगे. डू यू नो अबाउट द क्वांटिटेटिव डेटा एज वेल एज द क्वालिटेटिव डेटा, द टाइप्स ऑफ द डेटा? आइडिया है तुम लोगों को ना कि हमारे पास जो डेटा है वो दो तरीके का होता है. एक है क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा है क्वांटिटेटिव डाटा. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हमें रिक्वायर्ड है. जब हम उसमें कोई भी वेरिएबल फिट करते हैं, हमसे वो सबसे पहले यही पूछता है ये वेरिएबल कौन सा है, ये नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल है, ठीक है, या ये स्केल डेटा है. तो यहाँ पे जब हम क्वालिटेटिव डेटा की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जेंडर कुड बी द नॉमिनल डेटा. क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव में हमारे पास दो आते हैं, वन इज द नॉमिनल, अनदर वन इज द ऑर्डिनल. ठीक है, नॉमिनल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं जेंडर, मेल फीमेल. ठीक, उसका अपने आप में कुछ नहीं है, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी ऑफ द क्वांटिटेटिव वैल्यू.
सिर्फ एक उसका करेक्टरिस्टिक्स है हमारे सैंपल का, ठीक है, कि ये है क्या, क्या बता रहा है. तो दैट इज जस्ट द जेंडर, इट इज मेल और फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड. Then ordinal data, something related to the numbers. Numbers I mean to say, तुम लोग रेस में भाग रहे हो, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली एक बच्चा फर्स्ट आया, एक सेकंड आया, एक थर्ड आया, तो दैट इज नोन एज ऑर्डिनल डेटा, जहाँ पे नंबर्स की वैल्यू है, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, ठीक है. सो let it be, we are taking the data something on the response on Likert scale 1 to 5, and accordingly 1 2 3 ये strongly disagree से strongly agree तक measure कर रहा है, and in that case again it is the ordinal data. यहाँ तक देखो बेटे, qualitative का ये okay है, also known as the categorical data, that because the information is by the categories and not the numbers. क्वालिटेटिव डाटा ये जरूरी है बच्चों, हमें आगे जब आप लोग शीट्स बनाओगे इसकी, तो आप लोग मेरे को बताओगे कि जो भी हम ये वेरिएबल ले रहे हैं ये नॉमिनल है या ऑर्डिनल है या स्केल डेटा है. सो दिस थिंग यू कैन नोट इफ यू वांट टू, नॉमिनल डाटा एज वेल एज ऑर्डिनल डाटा. नॉमिनल के साथ एग्जाम्पल लिख लेना, जेंडर है या मैरिटल स्टेटस है. ऑर्डिनल के साथ नंबर्स की इंपॉर्टेंस है, रेस में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फोर्थ वाले को हम प्राइज नहीं दे रहे, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही दे रहे हैं. मदीरा चकना खाइए की खादा ना राजनदीप खादी है तू खादी बेहतर खादी. Okay. Further, we have quantitative data. After this, after the qualitative one, we have the quantitative data. So this is something very important which I have written over here. ये चीज अगर याद रखोगे ना, तुम आंसर अपने आप कर लोगे. तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, it answers how much, how many, how often. ठीक है, these are the numerical variables. कुछ values given है, वो values का कुछ मतलब है. So the quantitative data कैसे पता लगता है quantitative है? If it answers how much, how many, how often. And similarly, in this case, in the case of this quantitative data, we have two types. One is the discrete data and the other one is the continuous data. When we are talking about this discrete data, it involves integers. For example, the number of students in a class, ठीक है, the number of workers in a factory. So that is going to be the discrete data. Further, we have continuous data that is measured on a scale. For example, height of children, speed of cars, weight of a person. These all things would be related to this continuous data. अब पता कैसे लगे जो डेटा हमारे पास है ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? बताओगे कोई जना? कैसे पता लगता है कि जो डेटा गिवन है वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? मैम कॉन्टिन्यूअस में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होती है. ओके, तुम फ्रीक्वेंसी टेबल की बात कर रहे हो, है ना, जिसमें इंटरवल्स होते हैं. पर अगर मैं कहूँ हाइट ऑफ पर्टिकुलर चाइल्ड दैट इज 40 kg, ठीक है, उसमें तो अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है, फिर ये कॉन्टिन्यूअस क्यों हुआ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 5, उसमें तो अपर लिमिट नो लोअर लिमिट नहीं है. ये हम अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स में बनाते थे बेटे, जब हम ये डिस्क्रीट सीरीज, वो सीरीज की बात कर रहे थे. डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है? हाँ जी, हाँ जी, बोलो. चलो मैं डिस्क्रीट डाटा एक पर्टिकुलर नंबर है, जो पर्टिकुलर अमाउंट है, जो फिक्स्ड है, जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उतने ही रहेंगे. और कंटिन्यूअस डाटा दैट कैन बी वेरी पर्सन टू पर्सन. ओके ओके, राइट, वेरी गुड गुड ईशा. ये देखो एग्जांपल देख के लग रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉइंट में नहीं आ सकते,
बट हाइट और स्पीड और वेट जो पॉइंट में आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स इंटीजर्स, है ना, होल नंबर्स। देखो बेटा, यहाँ पे देखो, इसका ये बेस्ट है, आपने आंसर दे दिया है वैसे। आई अप्रिशिएट यू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन। जस्ट सी, दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड रूल। ठीक है, जब हमने देखना है कि हमारा डेटा कॉन्टिन्यूस है, डिस्क्रीट है, if the point of measurement can be reduced in half and still make sense, the data is continuous. For example, अगर हम number of workers, हम कहते हैं 5 वर्कर काम कर रहे हैं, उसको हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 2.5 वर्कर 2.5, उसका कुछ मतलब होगा? ठीक है। सिमिलरली हम कहते हैं एक बच्चे का टेस्ट स्कोर आया है 40 मार्क्स, 40 को हमने डिवाइड कर दिया बाय 2, 20 also means something, it represents something, but 2.5 नहीं कुछ मेजर कर रहा था। ठीक है, so let it be, if you want to talk about the number of children या number of workers, number of students, number of participants, उनको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, 2.5 आ गया, 52.5 आ गया। so वहां पे that is something discrete, not continuous. टेम्परेचर की बात की हमने, कहा आज ना 40 डिग्री है टेम्परेचर, उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, 20 आया, 20 ऑल्सो मीन्स समथिंग, द सेम थिंग। दिस इज वन रूल। और एक इसमें ये भी तुम लोगों ने सुना होगा, एक इंटरवल स्केल होता है और एक रेशियो स्केल होता है। ठीक है, इंटरवल स्केल वेयर 0 पॉइंट इज आर्बिट्ररी एंड रेशियो स्केल वेयर 0 इज ऑलवेज फिक्स्ड। लिकर्ट स्केल की बात कर रहे हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री, और बीच में एक न्यूट्रल आता है। सिमिलरली इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम कैन नेवर बी नेगेटिव। फाइन लग जाए तो डिफरेंट हो गया है, पर वो इनकम नहीं है। ऐसे नहीं है कि तुमने काम किया, अगला कहेगा कि तुमने काम भी किया, 500 रुपए मेरे को भी देके जाओ। सो इनकम कांट बी नेगेटिव, सेल्स कांट बी नेगेटिव। 0 सेल्स हो सकती है, बट ये नहीं हो सकता सेल्स नेगेटिव में होगी। Age can't be negative, height can't be negative. These are all related to the ratio scale. I think this was some revision only, है ना। आप लोगों ने ये already किया होगा अपने previous sessions में, quantitative as well as the qualitative data। इसमें हम बात कर रहे थे nominal data और ordinal data, as well as quantitative में हमने बात की discrete data as well as continuous data। साथ ही में हमने बोला interval scale as well as ratio scale। जब हम ये SPSS की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे स्केल एक ही लेके चलते हैं। वहाँ पे ना हम ये बात करते हैं कि रेशियो है, ना ही हम ये बात कर रहे हैं कि इंटरवल है। यहाँ तक ओके है बेटे? मेरे को बताओ जरा, किसी पॉइंट पे कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो। Ma'am, all Ma'am, clear. please clear about the interval scale and ratio scale. ये देखो बच्चों, कुछ भी अगर तुम डेटा की बात कर रहे हो उसमें 0 भी आ सकता हो, ठीक है, उसके अंदर, तो दैट इज रिलेटेड टू इंटरवल स्केल। लेट इट बी, आई वांट टू टॉक अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आज का मैं देखूं 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ पे नहीं होता है, बट हम बाकी कंट्रीज में सुनते हैं कि उनका टेम्परेचर आज -10 है। ठीक, क्या तुमने कभी सुना है किसी की इनकम -500 है? No. ठीक है, जिस चीज में माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव में भी फिगर्स हो सकती हैं, और वो नेगेटिव भी कुछ अच्छा खासा उसका मीनिंग होता है, तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरवल स्केल। एंड रेशियो स्केल, कभी किसी की हाइट नेगेटिव में नहीं होगी, ठीक है, छोटा होगा, लंबा होगा, बड़ा, जितना मर्जी हो सकता है, जिस मर्जी साइज का, एज पर द एज इट कुड वेरी, बट कभी 0 नहीं होती है हाइट। एज, एक बार जब बर्थ हो गया, एज स्टार्ट होगी उसकी, ठीक है, एज कैन नेवर बी नेगेटिव। सेल्स फिगर की बात कर रहे हैं, सेल ना होगी तो हम 0 सेल बोल देंगे कि सेल हुई नहीं आज के दिन में, नहीं तो 500, 1000, 5000, जो मर्जी है, वो फिगर्स पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू द स्केल वेयर वी वांट टू टॉक अबाउट इंटरवल स्केल एज वेल एज रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में 0 इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इंटरवल स्केल में 0 पॉइंट इज आर्बिट्ररी।
और इसका मतलब रहेगा। ठीक है, देखो ये इज इट ओके? मेरा जो ये प्रेजेंटेशन वाला काम था वो तो मेरा इतना ही था। ठीक है, फर्दर अब मेरे को तो हैंड्स ऑन सेशन के लिए आप लोगों का सॉफ्टवेयर ही खुलवाना है। सो दिस इज वन बुक, एंडी फील्ड की बुक है। दिस इज समथिंग वेरी गुड फॉर डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग SPSS। ठीक है, बाकी CR कोठारी आई थिंक सो तुम रिसर्च मेथोडोलॉजी की यूज करते होगे। सो दैट इज वन बुक जहाँ पे हमें सारे बेसिक्स अपने बहुत अच्छे से मिलते हैं, CR कोठारी। एंड अकॉर्डिंगली एंडी फील्ड की बुक है जहाँ पे SPSS के बारे में जान भी सकते हैं। बेटे यहाँ तक बोलो ओके है? चलो फिर इसके बाद हाँ सॉफ्टवेयर खोलो, अगर ये ओके है तो कुछ भी डाउट है वो पूछ लो। चलो अपने कैमरास भी ऑन करो और मेरे को पता लगे तुम लोग क्या देख रहे हो। Yes, just open SPSS now। तुम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है उसको खोलो। खुल गया है? I want to close this। देखो जरा मेरी SPSS की फाइल नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, आपका अपना खुल गया है SPSS? ओके, ये देखो ये फाइल सबसे स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहला आइकन दैट इज फाइल। ठीक है, इस फाइल से we can open our sheets। कैसे? let it be I want to import the data। मैं थर्ड ओपनिंग पे आई हूँ। थर्ड इज import data एंड डेटा मैं कहाँ से ले रही हूँ? मैं एक्सेल शीट से ले रही हूँ। एक्सेल शीट में मैंने रखा दिस इज द डेमो फाइल। बेटे ये दिख रहा है सबको? क्लियर है मैं कहाँ से खोल रही हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, फाइल पे गए, फाइल में इंपोर्ट डेटा। ये फाइल तो मेरे पास ही है खैर, है ना, मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर भी नहीं की है। सो फर्स्ट ये आ गया आपके पास और यहाँ पे हमने सारे टिक कर दिए। रीड वेरिएबल नेम्स फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ डेटा। फर्स्ट रो हमारे पास जो होगी, मैं पहले एक्सेल की फाइल दिखा दूं तुम लोगों को। वैसे तो नॉर्मल ही थी, ऐसी थी, आईडी है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, हाइट है, वेट है, इतना ही लिखा हुआ है उस फाइल के ऊपर। तो जो फर्स्ट रो है मेरी दैट इज द वेरिएबल्स। ठीक है, और इसको मैंने ओके किया, ये फाइल मेरे पास आ गई है। ये फाइल आई मेरे पास डेटा व्यू में। अब तुम लोग क्या करो, अपने डेटा व्यू में जाओ। डेटा व्यू तुम्हारा खाली होगा, है ना, उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें ये फिगर्स कॉपी कर लो जल्दी से। आईडी मींस कुछ भी लोगों के नाम हो सकते हैं, आईडी हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है। 1 2 3 4 20 तक ये कॉपी कर दो फटाफट से। मेरे को करके एक बार हैंड रेज कर देना कि भी हो गया है आपका। फर्स्ट वन इज आईडी। आईडी could be the roll number। मैं बोलूं आप लोग लिख रहे हो?
1 to 3 IDs में 20 तक, 1 to 20. Gender है next column, 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4 बारी 1, फिर 4 बारी 2, फिर 4 बारी 1. अगर मैं एक आधा वेरिएबल ऐसे हटाना चाहूँ ना, आई कैन रिमूव इट ऑल्सो. ये देखो, लेट इट बी, मैंने ये चूज किया मैरिटल स्टेटस और मैंने इसको राइट क्लिक से क्लियर कर दिया, खत्म हो गया, ये वेरिएबल नहीं रहा. मैम प्लीज रिपीट करना वेरिएबल वाला. बेटे कोई भी वेरिएबल मैंने चूज किया, ये वेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने क्लियर दबा दिया, क्लियर दबा के वो वेरिएबल हट जाएगा. ठीक है, ओके मैम. सिमिलरली आई कैन सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग. तुम्हारे पास जो भी डेटा है तुम कहते हो असेंडिंग में सॉर्ट करना है. ठीक है, तो लेट इट बी, ये मैंने किया, सारी मेरी डेटा फाइल असेंडिंग वेट के अकॉर्डिंग बन गया ये, क्योंकि मैंने वेट पे क्लिक किया था. सो ये असेंडिंग वेट बन गया. 45 इज द मिनिमम, मैक्सिमम वेट इज 85. ठीक है, दोबारा से करते हैं हम. ये आईडीज के ऊपर गई मैं, फिर से इसको मैं कर रही हूं, कहाँ गया, अगेन सॉर्ट असेंडिंग, यानी कि मेरा 1 से 20 तक फिर से बन गया है वो. आईडी को क्लिक किया राइट हैंड साइड और सॉर्ट असेंडिंग. ओके, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी करने के लिए. बेटे यहां तक बताओ, ये तुम लोगों से डेटा कॉपी हुआ है या मैं ये शीट तुम लोगों के साथ शेयर करूं, कैसे करना है? मैम कर्सर ही नहीं दिख रहा है. कर्सर आ नहीं रहा है. मैम आपने जब असेंडिंग वगैरह वाला भी किया है ना, तो हमारी स्क्रीन पे वो स्टिल है वैसे ही, नथिंग इज चेंजिंग ऑन द स्क्रीन. ये वाला अभी दिख रहा है सॉर्ट असेंडिंग? नो मैम. मैम चलो तुम अपने पे करके देखो, मैं बता रही हूँ, इंस्ट्रक्शन देती हूँ फिर, है ना, आप लोगों को थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग करो. आईडी पे क्लिक करो या वेट पे क्लिक कर लो पहले. अच्छा मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है इस पे, कर्सर क्यों नहीं आ रहा है? चलो बेटे एक बार आप ऐसे ही करो, वेट पे क्लिक करो, वेट पे क्लिक करके राइट हैंड साइड राइट क्लिक, खुद करके बताओ मेरे को क्या आया. सॉर्ट असेंडिंग आ रहा है, कट कॉपी, कॉपी विद वेरिएबल नेम, कॉपी विद वेरिएबल लेबल्स, एडिट वेरिएबल नेम आ रहा है ये. पहले ये बताओ कितनों का ये एसपीएसएस खुल गया है? मैम कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है, फोन पर नहीं हो रहा. फोन पे तो खुलेगा ही नहीं है ये, फोन पे तो नहीं सॉफ्टवेयर खुलेगा. फोन पे नहीं खुलेगा बच्चों ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हैवी है ये, लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही खुलना है. तो तुम लोग अभी के हम लिए लैपटॉप पे पिछले 10 मिनट से मेरा कर्सर ही घूम रहा है मैम, वो खुल ही नहीं रहा है. अच्छा ये पहले खोलना था, कोई बात नहीं है, खुल जाएगा वो. तुम उतनी देर इंस्ट्रक्शंस लिखते रहो, ठीक है, कि क्या कहाँ से क्या स्टार्ट होना है और कैसे होगा. इसकी पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो डेटा की अभी.
फिर आप लोग एक चीज़ कर सकते हो इसके बाद, मैं अपनी मेल आईडी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सेंड मी जो भी आप लोग अपनी फाइल्स में तुम्हारे पास डेटा शीट बन के आएगी, है ना। इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो जो तुम्हें डायरेक्शंस होंगी वो चीज़ें तुमने कैलकुलेट करनी है। Share the screen again. Let me share my screen again. मैम आ गया कर्सर। कर्सर आ गया, वेरी गुड। चलो देखो बेटा, ये वेट था, राइट क्लिक किया, सॉर्ट असेंडिंग, ठीक है। ये असेंडिंग, मिनिमम वेट मेरे पास आ गया 45, मैक्सिमम वेट आ गया है 85, राइट है ये। सिमिलरली मैं आईडी पे गई, फिर से सॉर्ट असेंडिंग किया, 1 to 20 मेरा वही फिर पुराने वाला आ गया, बिकॉज आईडीज वर 1 to 20। ये मैंने कहाँ से लिया था, मैंने फाइल इंपोर्ट की थी, फाइल के थ्रू इंपोर्ट डेटा करके एक्सेल से ले लिया, ठीक है। मेरे पास एक्सेल की फाइल ऑलरेडी थी, तुम्हारे पास नहीं है, ये चीज़ें वैसे ही उसमें लिख दो। ये डेटा व्यू आ गया जहाँ पे हमारे पास कुछ भी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। आगे आता है हमारे पास, नीचे देखो जहाँ पे कर्सर है, डेटा व्यू के साथ वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में गए, सबसे पहला है आईडी, अगला जेंडर, थर्ड वन हाइट, फोर्थ वन वेट, ठीक है। वेरिएबल कैसे हैं, न्यूमेरिक हैं, या स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, दोज आर दी अल्फा न्यूमेरिक। आगे हम बात कर रहे हैं लेबल की। यहां तक देख लो, वेरिएबल व्यू में क्या आया, तुम्हारे पास डेटा व्यू में 4 रोज थी, आईडी जिसमें था हमारे पास, हमने बोला ये रोल नंबर्स हैं, ठीक है, कुछ भी उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। फिर आ गया हमारे पास जेंडर, यहाँ पे हम डिटेलिंग करते हैं लेबल में कि ये है क्या, किसकी बात कर रहे हो तुम, ठीक है। हाइट, हाइट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, हाइट इन इंचेस लेट इट बी, ठीक है, ये दिया है। आगे वेट, वेट इन केजी, ये हमने टाइप किया है इसमें, ठीक है। ये आगे क्या रोल नंबर तुम्हें कुछ बता रहे हैं, सिंपल है, रोल नंबर 1 2 अप टिल 20, तो कुछ इसकी वैल्यूज का अदरवाइज हमें जो गिवन है वही मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे हम बात करने लगे जेंडर की। ये आपका क्लिक करने से आता है। अब जेंडर की जब हमने बात की, हमारे पास डेटा फाइल में था, डेटा व्यू में जाओ, वहां पे हमारे पास था 1 and 2, हमें तो नहीं पता ये 1 2 क्या है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, उससे ऐड किया। 1 क्या बता रहा है, लेट इट बी, हमने कहा 1 इज फॉर फीमेल, और यहाँ से ऐड किया 2 इज फॉर मेल। देखो ये जरा, और ओके कर दिया मैंने। अब मैं डेटा व्यू पे जा रही हूँ, फिर से डेटा व्यू पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे आप लोगों को ये वाला एक व्यू लेबल, ये कुछ दिख रहा है आपको, देखो जरा क्या इसमें क्या चेंज हुआ जब मैंने इसको क्लिक किया। तो पहले मेरे पास जेंडर आ रहा था 1 2 की टर्म्स में,
अब यहाँ पे मेरे पास आ गया कि 1 क्या बता रहा है, 2 क्या बता रहा है। वो कहते हैं 1 बता रहा है फीमेल, 2 बता रहा है मेल, और ये आ गया है 1 2। इज इट ओके? कहाँ से ये हो रहा है? फिर से मैं Yes, ma'am. हाँ, फिर से वेरिएबल व्यू में जा रही हूँ। क्या किया यहाँ पे? लेबल है, उस वेरिएबल की क्लियरली उसको डिफाइन कर रहा है ये है क्या। वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से ये डॉट्स, जो 3 डॉट्स बनी हुई है, इसको क्लिक करके ये ऐड 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 करी चलो, जो भी जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसमें, ठीक है, जितनी भी उसमें बाइफर्केशन है, ओके कर दिया और डन हो गया। हाइट इन इंचीज, हाइट हमें कुछ स्पेसिफिकली नहीं बता रही है, जितनी उनकी हाइट है वो वहाँ पे नजर आ रही है। सो वी डोंट रिक्वायर एनी, we don't have any categories in this case. Similarly for weight also we don't have any categories, ठीक है। आगे ये चीज हमें ना, ये हमें खुद चूज करनी थी मेजर में जाके, नॉमिनल है, स्केल है कि ऑर्डिनल है, ठीक है। आईडीज की बात कर रहे हैं, रोल नंबर की। सो रोल नंबर कुछ नहीं बता रहा है, 1 2 3 4, इट कुड बी ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा। क्या बताओगे रोल नंबर? Ordinal है मैम. चलो जी, अगला जेंडर। जेंडर क्या है? Nominal है. वेरी गुड, नॉमिनल है। फिर हमारे पास आया हाइट। हाइट क्या है? Scale है मैम. यस, स्केल है, हाउ मच, ठीक है। उसमें हमारे पास आंसर क्वेश्चंस थे जिनको हमने आंसर करना था। एंड वेट इज आल्सो स्केल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम फिर से अपने डेटा व्यू में देखते हैं। यहाँ तक बताओ किसी को कुछ डाउट? डेटा व्यू एज वेल एज वेरिएबल व्यू। डेटा व्यू में तो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो भी हमारे पास डेटा था, जो भी हमने रिस्पॉन्सेज कलेक्ट की। 20 स्टूडेंट से पूछा तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारा वेट कितना है, एंड अकॉर्डिंगली हमने मार्क किया ये फीमेल है या मेल है, जेंडर के अकॉर्डिंग। और ये हमारा वेरिएबल व्यू है, जहाँ पे हमारे वेरिएबल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। यहाँ तक बताओ बच्चों, अगर कुछ भी डाउट है तो। कोई जना लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर कर रहा है जिसका सॉफ्टवेयर खुल गया हो? Is it okay till here? थोड़ा इसमें हम आगे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अगर इतना सारा डेटा हमारे पास है कि 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके जेंडर की इंफॉर्मेशन है, उनकी हाइट की इंफॉर्मेशन है, उनके वेट की इंफॉर्मेशन है, ऐसे अगर एक स्प्रेडशीट दे रखी है जिसमें इतना सारा डेटा है, आई थिंक शायद हमें कुछ बता नहीं रहा है कि इसका क्या पर्पज है। लेट इट बी, आई गो टू एनालाइज। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6th वन एनालाइज। एनालाइज पे कर्सर है मेरा, एनालाइज पे मैं गई, यहां से हमारे पास सारी कैलकुलेशंस होनी है। और सबसे पहले हम आए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एंड इसमें फर्दर है फ्रीक्वेंसीज। देखो जरा, आई विल रिपीट दिस स्टेप। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड फ्रीक्वेंसीज। क्लिक कर रही हूं मैं फ्रीक्वेंसीज। ये आ गया मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स। किसकी मैं फ्रीक्वेंसीज जानना चाहती हूँ? मैं जानना चाहती हूँ मेरे डेटा में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। आई वांट टू नो हाइट मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, या एवरेज हाइट कितनी है। आई वांट टू नो एवरेज वेट कितना है।
मिनिमम वेट कितना है, मैक्सिमम वेट कितना है मेरे रिस्पोंडेंट्स का। ठीक है, अब ये होता कैसे है, हमारे पास जब ये डायलॉग बॉक्स खुला, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ गए, जितने भी वेरिएबल्स थे सारे वेरिएबल्स आ गए लेफ्ट हैंड साइड। ये था हमारा सीन। इज इट ओके? उसमें से मैंने जेंडर के बारे में जानना है, या तो मैं जेंडर को क्लिक करूंगी और ये एरो को क्लिक करूंगी और ये राइट हैंड साइड वेरिएबल्स में आ जाएगा। वेरिएबल्स मींस किसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, ये जेंडर यहाँ पे आ गया। अगली चीज कर सकती हूँ मैं, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूं, हाइट के ऊपर लेट इट भी डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। तीसरी चीज हो सकती है मैं इस वेरिएबल को पकड़ के यहाँ पे ले आऊं। ठीक है, सो वन थिंग इज उसको सिलेक्ट किया और एरो पे क्लिक किया, वेरिएबल आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। अगला था उसको डबल क्लिक किया और वेरिएबल आ गया राइट हैंड साइड पे। थर्ड थिंग थी मैंने उसको ड्रैग कर लिया, पकड़ के ना यहाँ से ले आए, आई जस्ट ड्रैग्ड इट। एंड आगे क्या किया, ओके दबा दिया। अब और कुछ नहीं किया, मैंने ओके दबा दिया। इज इट ओके? यहाँ तक ओके है जो मैंने किया? ये देखो क्या आया, तुम्हें आउटपुट शीट नजर आ रही है? आउटपुट शीट नजर आ रही है? यस मैम। ओके, ये हमारे पास कहां से आई, जब मैंने एनालाइज में गए, एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसमें से फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज में जौन जौन से वेरिएबल्स की हमने फ्रीक्वेंसीज जाननी थी वो हमारे पास आ गई। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, वही आ जाएगा जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था। और मैंने इसको ओके कर दिया। ओके किया, मेरे पास ये शीट आ गई है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जेंडर के 20 वैलिड केसेस हैं, मिसिंग वैल्यू इज 0। हाइट 19 वैलिड केसेस एंड 1 इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये जब तुम लोग अपनी डेटा शीट पे जाओगे, अभी मैं दिखाती हूँ उसको दोबारा से, वहां पे हाइट की एक फिगर मिसिंग होगी। सिमिलरली वेट पे 20 वैलिड केसेस हैं एंड कोई मिसिंग फिगर नहीं है। ठीक है, आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या बता रही है, फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया है जेंडर के बारे में। 12 आर फीमेल्स एंड 8 आर मेल्स, टोटल इज 20। ऐसी टेबल बनाते हैं हम अपने, जब भी कोई कुछ लिखते हैं, जो भी हमने डाटा कलेक्शन की होती है, उसके साथ ही में परसेंटेज आ गई और वैलिड परसेंटेज आ गई। हमेशा ये तुम्हारी परसेंटेज एंड वैलिड परसेंटेज, इट इज गोइंग टू बी इक्वल अगर हमारे पास कोई मिसिंग डाटा नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये हाइट की बात कर रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक मिसिंग फिगर भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी परसेंटेज 95 है और वैलिड परसेंटेज 100 है, क्योंकि एक उसके पास मिसिंग फिगर है। सिमिलरली वेट की बात कर रहे हैं, वेट में दोनों फिर से सेम आ गई हैं, परसेंटेज एज वेल एज वैलिड परसेंटेज, ये दोनों सेम है। वेट में ये दोनों सेम नहीं थी, वेट में था ये 95 और ये 100। यहाँ तक देखो ओके है। अब मैं आपको एक बार डेटा शीट दोबारा से दिखाऊं। हम ये आउटपुट शीट जैसे ओके करेंगे अपने आप आ जाएगी, कहीं से निकालनी पड़ेगी? हाँ, अपने आप आ जाएगा, अपने आप वो स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। दोबारा देखनी है तो मैम? दोबारा देखनी है, वैसे तो हम उसको सेव करते हैं। ठीक है, बट दोबारा भी लेट इट भी, मैंने वही से फिर से ये किया, ओके कर दिया और आ गया मेरे पास। ठीक है, ओके करने पे अब मैं इसमें थोड़ा सा एक एडिशन कर दूं। मैंने यहाँ पे ना चार्ट्स भी दिखाने हैं कुछ, तो लेट इट भी मैंने चार्ट्स दबाया और उसमें से बार चार्ट ले लिया, बार चार्ट सिलेक्ट किया है। और बार चार्ट जो मैंने लेना है, मैंने किस पे लेना है, मैंने परसेंटेज पे ले लिया।
either you can take it on frequencies or you can take it on percentage. लास्ट में ये दिया हुआ है कंटिन्यू के ऊपर फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज, और इसको मैंने कंटिन्यू किया और यहाँ पे आके ओके पे फिर से आ गई हूँ। ओके, लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। पहले वाला तो हमारा ये रहा, जब हमने पहले ओके किया था ये हमारे पास आया था। अब जब मैंने दोबारा से ओके किया है मेरे पास वही स्टैटिस्टिक्स, जेंडर, इसके बारे में बताया, हाइट के बारे में बताया, वेट के बारे में बताया, और साथ ही मेरे पास आ गई ये, देखो जरा, हम लोग बनाते हैं ये फिगर्स अदरवाइज हर अलग अलग जगह पे, है ना। यहाँ पे एक क्लिक पे हो रहा है हमारा सारा। जेंडर 60% आर फीमेल्स, 40% आर मेल। सो अब आप लोग कहते हो कि मैडम हम क्या करें, या तो इसको सेव कर लो, ये फाइल पे गए, ये रहा तुम्हारा सेव, देखो आ रहा है, फाइल पे जाके सेव कर दो इसको। कहाँ पे सेव करना चाहते हो ये बता सकते हो। लेट इट बी, मैंने कहा मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है। डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर है SPSS। SPSS में मैंने आउटपुट 3 को लेट इट बी मैं नाम दे दूं, कौन सी फाइल है ये GHG1 वाली फाइल है, ठीक है, फाइल का जो भी नाम दिया। अब फाइल का फॉर्मेट देखो, .spv, ये फाइल मेरी खुल गई है, सेव हो गई है। और अगर अभी मैं अपने डेस्कटॉप पे गई, मेरे डेस्कटॉप पे ये वाली फाइल खुल गई है जो अभी हमने सेव की थी, ठीक है। और इसमें लिख दिया उन्होंने दिस इज ऑलरेडी ओपन। सो यू हैव टू सिलेक्ट द डेस्टिनेशन जहाँ पे तुमने अपनी फाइल सेव करनी है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है कहाँ पे फाइल सेव कर रहे हो। यहाँ तक देखो, ये बार चार्ट आ गया जेंडर के रिलेटेड, ये हाइट के रिलेटेड, एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वेट। इतना तो पता लग रहा है कि कितने लोग हैं, हाइट कितनी कितनी है, और दूसरी तरफ कितने परसेंट लोगों की जो हाइट है वो 58 है, कितने परसेंट लोगों की हाइट जो है वो 65 है, 66 है। सिमिलरली रिलेटेड टू वेट, आई वुड बी डूइंग वन मोर थिंग। वेट, मेरे को क्लिक करना है एनालाइज, फिर से डिस्क्रिप्टिव पे जा रही हूँ, फ्रीक्वेंसीज पे जा रही हूँ, वही वाला कर रही हूँ मैं, है ना, बार बार वही कर रही हूँ। अभी मैं चार्ट्स पे गई, पहले हमने लिया था बार चार्ट, अब मैं ले रही हूँ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के साथ शो नॉर्मल कर्व और कंटिन्यू, लेट इट, देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। देखो जरा, ये हिस्टोग्राम्स आ गए हैं, जेंडर का है, ये मैरिटल स्टेटस पहले किया था हमने, मेरी फाइल और आ गई आई थिंक सो। ठीक है, दिस इज हिस्टोग्राम्स।
अब यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं एक चीज, जब हमने बार चार्ट देखा, जेंडर वाला बार चार्ट हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल था, और अगर हम ये वाला जेंडर के लिए या मैरिटल स्टेटस के लिए कुछ भी ये देख रहे हैं, ये हमारे लिए शायद उतना मीनिंगफुल नहीं है। इसमें वो कह रहा है मीन इज 1.4, स्टैंडर्ड एविएशन इज 0.503, ये साइड पे फिगर्स दिए हुए हैं, n इज इक्वल्स टू 20। सिमिलरली ये है तुम्हारे पास मीन हाइट दैट इज 65.32, स्टैंडर्ड एविएशन इज 4.522, n इज 19 क्योंकि हमारी एक मिसिंग वैल्यू थी इसमें। Similarly, this is related to weight. Mean weight is 67.3. Standard deviation is 10.834 and n is 20. 20 थे यहाँ पे, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं थी इसमें। ठीक है, एक चीज आप लोग पूछ रहे थे कि मैडम हमने कुछ पहले कैलकुलेट किया होता है, वो कहाँ से जा सकते हैं। मैंने सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी ना, अगर ये मैं राइट क्लिक यहाँ पे करूँ तो यहाँ से ये आ सकती है। सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने एक बार चार्ट से कैलकुलेट किए, वो मेरे यहाँ पे आ गए। जो हम दबाएंगे वो आ सकता है, अगर उसी शीट पे उसी टाइम पे जा रहे हो। नहीं तो इसको सेव कर दो, सेव करके डेस्कटॉप पे या जौन सी भी जगह पे तुम रखना चाहते हो वहां पे अपनी डेस्टिनेशन खुद डिफाइन करके इसको सेव कर सकते हो। यहाँ तक बताओ बेटो, यहाँ तक तुम लोगों को क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं समझ आ रहा। आई शुड गेट योर फीडबैक नाउ। हाँ जी, अभी सिर्फ हमने एक ही डिस्कस किया है डिस्क्रिप्टिव में, फ्रीक्वेंसीज, सिर्फ इतना डिस्कस किया है हमने। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, हमने चार्ट्स के ऊपर जाके बार चार्ट्स या हिस्टोग्राम्स बना लिए हैं। हाँ जी, ओवर टू यू स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी जो भी डाउट्स हैं, जो चीज़ नहीं समझ आई है। हाँ जी बेटा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं आगे बताऊं बच्चों, ये मेरे को आपके फीडबैक से पता लगेगा। आगे बताऊं, इसको रिपीट करूं, क्या करूं? इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इट्स वेरी गुड। पर जब तक ये खुद नहीं सॉल्व करोगे, मतलब चला के नहीं देखोगे, नहीं आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कल फ्रीक्वेंसीज की बात की थी। अभी अगर मैं डिस्क्रिप्टिव्स में जाऊं, ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव में जाके मेरे पास, वेट मैं अपनी फाइल चेंज करती हूँ, एक मिनट। डिस्क्रिप्टिव में जाके मैंने फिर से ये वेरिएबल्स लिए। ठीक है, इसकी ऑप्शंस में जाके देखो इसमें क्या आ रहा है। ये ऑलरेडी ना इसमें टिक पहले से लगे हुए हैं। मीन टिक है, स्टैंडर्ड एविएशन है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, लेट इट भी मैंने सम भी कर दिया एंड वेरिएबल्स आ जाएंगे। कंटिन्यू किया और यहाँ पे ओके आ गया। ये ओके देखो तुम्हारा ना हो रहा है, मतलब क्लिक हो रहा है। किसी केस में ऐसे भी हो सकता है तुम्हारा ओके क्लिक ना हो, इट मीन्स कुछ रह गया है जो तुमने पहले क्लिक नहीं किया। जस्ट सी, just a minute.
ये देखो क्या आया मेरे पास, जेंडर की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम कितना है, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। ठीक है, दिस आई गॉट फ्रॉम दी डिस्क्रिप्टिव्स। क्या किया हमने, एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव में गए। पहले हम जो कर रहे थे वो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू कर रहे थे। फ्रीक्वेंसीज से हमने बार चार्ट भी बनाया था और हमने हिस्टोग्राम भी बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एनालाइज पे जाके डिस्क्रिप्टिव में जाके डिस्क्रिप्टिव पे ही आए। डिस्क्रिप्टिव पे आके जौन जौन सी चीज़ों के बारे में कुछ जानना था उसका हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाल लिया है। Similarly, if I want to know something more, I can go in descriptive statistics and explore. ये रहा देखो, पहला फ्रीक्वेंसी था, अगला डिस्क्रिप्टिव है और चौथा है ये एक्सप्लोर। एक्सप्लोर पे गए, क्या जानना चाहते हो तुम। डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेट इट बी मेरा हाइट, मेरा वेट, और मैं इसको कैटेगराइज करना चाहती हूँ जेंडर के अकॉर्डिंग। ये मजेदार है, ये देखो क्या आएगा। एम आई क्लियर कि मैं काम से पहुंची हुई यहाँ पे। एनालाइज पे गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए और फोर्थ वन था उसमें एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में आए, एक्सप्लोर में आए तो मैंने डिपेंडेंट लिस्ट में लिया हाइट और वेट और फैक्टर लिस्ट में लिया जेंडर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या आने वाला है। इसमें देखो आ गया ये, जो भी हमें ये हाइट वेट का डेटा गिवन है, ये मेल और फीमेल वाइज, जेंडर वाइज उसको बाइफरकेट कर दिया है। चाहिए हमें यही था, हम यही जानना चाहते थे कि जो मीन हाइट है वो फीमेल्स की कितनी है, मीन हाइट मेल्स की कितनी है, वेट कितना है फीमेल्स का। ठीक है, या इसमें सबसे पहला जो है, जो समरी है उसमें तो सिर्फ एन ही आया है, कितने कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। सेकेंड वाला डिस्क्रिप्टिव में देखो, हाइट ऑफ द फीमेल्स, उसका मीन है 62.83, मेल्स का मीन हाइट इज 69.57। सिमिलरली वेट की बात करो, मीन वेट फॉर फीमेल्स इज 62, ये रहा, एंड मीन हाइट फॉर द मेल्स इज 75.29। ठीक है, इसमें देखो और क्या कुछ आ रहा है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट आ रहा है, बॉक्स प्लॉट्स आ रहे हैं। ये बॉक्स प्लॉट्स के थ्रू एक तो उन्होंने एवरेज दिखा दिया मेल्स फीमेल्स की हाइट का। ठीक है, सिमिलरली ये वेट का आ गया नीचे। यहाँ तक बताओ बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम रेंज सारा कुछ आ रहा है इसमें। मिनिमम हाइट फॉर नहीं, वेट है ये लास्ट वाला। मिनिमम वेट फॉर मेल्स दैट इज 64, मैक्सिमम वेट फॉर मेल्स इज 85। Similarly, minimum weight for females is 45, maximum weight for females is 80। ये देखो, बताओ बच्चों मेरे को यहाँ तक बताओ। ये किया हमने, एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए और एक्सप्लोर किया। फोर्थ वन वाज एक्सप्लोर। ओके है, पहले हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसीज की बात की, फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हमने एक बार चार्ट और हिस्टोग्राम भी बनाया। फिर हमने डिस्क्रिप्टिव्स में ही जाके और एडिशनल इंफॉर्मेशन ली, उनका मीन मीडियन वगैरह निकाल लिया। ये एक्सप्लोर में जाके हमने मेल्स और फीमेल्स का अलग अलग से भी डेटा ले लिया। मेल्स की मीडियन हाइट कितनी है, मीन हाइट कितनी है, फीमेल्स की कितनी है, उनका वेट कितना है। अगेन वी बाइफरकेटेड आवर थिंग्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ऐसे ही अगर तुम देखोगे ये एनालाइज में कितना कुछ है, ये आगे जाके कोरिलेशन भी है, रिग्रेशन भी है, ये डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर एनालिसिस सुना होगा तुम लोगों ने। ठीक है, कंपेयरिंग द मीन्स भी है, वन सैंपल टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल, ये सारी जो अनोवा की बात कर रहे थे, एक टर्म तुम लोगों ने शुरू में बोली थी, दिस इज वन वे अनोवा। ठीक है, दिस इज टू कंपेयर द मीन्स। बेटे अब तुम लोग पूछ सकते हो मेरे को, आगे मेरे को बताओ, जो कहोगे वो मैं कैलकुलेट करती हूँ। आई एम हैविंग सो मेनी शीट्स ऑल्सो, बट जस्ट सी योर टाइम ऑल्सो अकॉर्डिंगली, है ना। मेरे को ये भी बता दो कि मेरे पास कितना टाइम है।
So this was the introduction to SPSS. इसको चलाना कैसे है? हाँ जी बेटे, आप लोग बताओ मेरे को, आप पूछो क्वेश्चंस। हम इस पे कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई लेट इट बी, यू वांट टू कंपेयर समथिंग, जो भी आपके पास डेटा है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिटल स्टेटस, on the basis of any of the people living in various states. Let it be, I take 5 states or 10 states, and accordingly I have taken 10 people from each state. ठीक है, किसी भी बेसिस पे, and accordingly we can get any sort of the analysis whatever you require. ये तो तुम्हारी मर्जी है ना, अब इतना एनालाइज में इतना कुछ है, क्या जानना चाहते हो, कुछ मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। अभी भी हमारे पास जो ये फिगर्स इसके पीछे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी it could be some comparison related to the heights for the males as well as the females, related to the weight of the females as well as the males, which we have taken in our sample, and this sample we are finding it to be representative, means जो भी हमारी population है उसको represent कर रहा है। ये तुम्हारी क्लास में हो सकता है 100 स्टूडेंट्स हों, 100 में से तुमने 20 का डेटा ले लिया, तो जो भी तुम्हारी मीन हाइट है क्लास की, हो सकता है जो तुम्हारा सैंपल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जनरलाइज कर सकते हो कि हमारी क्लास में मैक्सिमम हाइट इतनी है। Yes, anything else? अगर किसी ने साथ साथ सॉल्व किया है, मैं आप लोगों की स्क्रीन भी देखना चाहूँगी। इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट सी कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। अगर सारा क्लियर हो रहा है, इट्स वेरी गुड। Should I stop sharing my screen? And if any of you want to share your screen? आपकी स्क्रीन में ये SPS अगर आपने चलाया हुआ है, then you people can share it. Yes, right. प्रेरणा चल रहा है तुम्हारा? नो मैम, वो अभी भी घूम ही रहा है, फिर मैं देख रही थी। ओके, अभी भी घूम रहा है तो हैंग हो गया है तुम्हारा सिस्टम। इसको एक बार बंद करके दोबारा से इसको चला सकते हो। ठीक है मैम। हाँ, ये हैंग हो गया बेटा, ये हैवी है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर। ये मैम अभी भी ऐसे ही घूम रहा है ये। हाँ, इसको एक बार एग्जिट कर दो, एग्जिट करके दोबारा से इसको ऑन करो, और उसके ऊपर जब क्लिक करोगे ये हो जाएगा। ठीक है, और तुम लोग करोगे क्या, ये जो हमारी डेटा शीट थी, इस डेटा शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके ऊपर इसको क्लिक क्लिक करके जो भी तुम क्लिक करना चाहते हो वो क्लिक कर सकते हो। अगर तुम लोग देखोगे, एनालाइज के साथ ना एक ग्राफ्स भी हैं। ठीक है, ग्राफ्स में लेट इट बी, हम चार्ट बिल्डर पे जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें। जितने भी ग्राफ्स तुम्हें आते हैं या जिस तरीके के भी तुम बनाना चाहते हो। अदरवाइज हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके हमने फ्रीक्वेंसीज के थ्रू भी बना लिए थे।
बेटे मेरे को बताओ आगे मैं इसको, और आई कैन डू विद यू रिलेटेड टू को रिलेशन इफ यू वांट टू, ठीक है, या और जितने भी इसमें आ रहे हैं वी कैन डू इट। जस्ट मेरे को बताओ कि अभी तक का जो है उसमें जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, अदरवाइज अगर कहते हो आई विल मूव फर्दर फर्स्ट। रशपाल सर। जी मैम। हाउ मच टाइम आई हैव? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ओके ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5-4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ सर बेसिक्स का तो मेरा हो गया है, अगर ये बच्चे अब मेरे को रिस्पॉन्ड देंगे इनका, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर नहीं चला है, जी तो इन दैट केस आई नीड देयर इनपुट्स फर्स्ट। मैं आपके साथ ये कर सकती हूँ, ये मैं शीट ही आपको शेयर कर देती हूँ, आप बच्चों के साथ ये शीट शेयर कर दो श्योर एंड श्योर। अकॉर्डिंगली इसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करके मेरे को अपना फीडबैक दे सकते हैं, है ना, जो भी इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहाँ भी इन्हें डाउट्स आ रहे हैं, आई वुड बी हैंडलिंग देयर डाउट्स। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। आई विल बी शेयरिंग दिस एक्सेल शीट विद यू सर। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ हाँ जी ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਕੋਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ। ठीक है सर, मैं प्रेजेंटेशन और डेटा शीट ये दोनों ही कर देती हूँ आपको। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। ਤੁਸੀਂ यूज ऑफ SPSS एज टूल फॉर डाटा एनालिसिस डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन के हाउ इट्स एक्वायर्ड बाय IBM in 2009, why we use SPSS, various features of SPSS, layout, types of data जो ਤੁਸੀਂ qualitative and quantitative data ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, और ਉਹਦੇ ਚ डिस्क्राइब ਕੀਤਾ what are the nominal scales, what are discrete data, ordinal, continuous सारा, और जो ਤੁਸੀਂ खास करके जो data sheets बना के how to show various types of graphs, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ MEd ਕਰਨੀ ਆ, MPhil ਕਰਨੀ, PhD ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ with graphical representation, all types of graph we can draw on it. So thank you ma'am, on behalf of management, on behalf of principal, faculty members, our students, thank you so much। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀਆਂ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच सर। सर ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ SPSS ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
सर आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है. Am I audible? Is it a network issue, sir? ठीक है जी. एक मिनट, मुझे नहीं पता कौन कितने. I think we can end the meeting here, ma'am. I am done by my side, and I was waiting for Rashpal, sir. I don't know, might be his system is hanged. There is some network issue. Ma'am, even I think probably he has lost his connection. Yeah, So right, I'm Dr. right. Manu calling, and he has lost his connection, it seems, somewhere. So on behalf of the management, faculty, and principal sir, faculty, and the students, I extend heartfelt thanks to you, ma'am. Thank you for being here with us. And in fact, it was really an exhaustive and a very comprehensive deliberation from your end. Thank you so much, ma'am. And we'll be looking forward to you for face-to-face interaction, because I think this is one topic which could have served better had it been face-to-face. Like we could have learned, and even the hands-on could have been more, I mean, it could have been more fruitful. Otherwise also, on behalf of the students, I feel that they are quite easy with their SPSS and the calculation part now. Thank you so much, ma'am. Thank you for being here with us. Thank you so much, ma'am, and really congratulations for your nice initiative also for this value-added course. Thank you. Thank you, ma'am. So Thank much, you so ma'am. much. Okay. And so, dear students, we end the meet here. Thank you for being with us. Thank you all the students for their wholehearted participation, irrespective of the fact that they were very busy with their exams, with their synopsis writing, with their dissertation. But we are very sure that our students are multitaskers. So good luck, beta. Good luck, all of you. And thank you, ma'am. Thank you once again. Thank you so much, ma'am, and Okay, congratulations ma'am. to all the Okay. students. Okay. also. Bye-bye. Have a nice day, ma'am. Bye, ma'am.